Namaskar, Shalom. Dear friends, wish you all a very happy Independence Day. Today, as we celebrate 79th Independence Day, I, on behalf of my team, extend very warm greetings to all fellow Indians and members of our Jewish community present today. Yesterday, our Honorable President Srimati Draupadi Murmu addressed the nation. I will read some excerpts from her address. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ये दिवस हमें भारतीय होने के गर्व का विशेष स्मरण कराते हैं। 15 अगस्त की तारीख हमारी सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के दौरान देशवासियों की अनेक पीढ़ियों ने यह सपना देखा था कि एक दिन देश स्वाधीन होगा। देश के हर हिस्से में रहने वाले पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल थे। उनके संघर्ष में निराशा नहीं अपितु बलवती आशा का भाव था। आशा का वही भाव स्वतंत्रता के बाद हमारी प्रगति को ऊर्जा देता है। कल जब हम अपने तिरंगे की सलामी दे रहे होंगे, तब हम उन्हीं सभी स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिनके बलिदान के बल पर 78 साल पहले 15 अगस्त के दिन भारत ने स्वाधीनता हासिल की थी। Dear fellow citizens, our constitution contains 4 values as our 4 pillars of upholding our democracy. They are justice, liberty, equality and fraternity. These are our civilizational principles that we rediscovered during the freedom struggle. Keeping these principles foremost in mind, we started a new journey in 1947. After the long years of foreign rule, India was in utter poverty at the time of independence. But in the 78 years since then, we have made extraordinary progress in all fields. India is well on the way to becoming a self-reliant nation and is moving ahead with great confidence. In the economic field too, our achievements are more noticeable with a GDP growth rate of 6.5% in the last fiscal year. India is the fastest growing among major economies in the world. A large number of people have been pulled out of poverty through good governance. Some income inequality is reducing. Regional disparity is also disappearing. We have expanded and strengthened the national highway network under Bharatmala Pariyojana. The railways too have innovated, introducing new types of trains and coaches equipped with latest technologies. The inauguration of rail link in Kashmir Valley is a major accomplishment. Rail connectivity with the valley will boost trade and tourism in the region and open new possibilities. The engineering marvel at Kashmir is a historic milestone for our country. Artificial intelligence is the next stage of technological development and has already entered our lives. The government has launched India AI Mission to strengthen the country's AI capabilities. प्यारे देशवासियों, सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों से संवर्धित समग्र आर्थिक विकास के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के मार्ग पर अग्रसर है। मैं समझती हूँ कि अमृतकाल में इस दौर में आगे बढ़ते जाने की राष्ट्रीय यात्रा में सभी देशवासी यथाशक्ति अपना सर्वाधिक योगदान देंगे। मेरा मानना है कि समाज के तीन ऐसे वर्ग हैं जो हमें प्रगति के इस मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। ये 3 वर्ग हैं हमारे युवा, महिलाएं और वे समुदाय जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं। युवा प्रतिभाओं की ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करके हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। मुझे विश्वास है कि शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को ऊंचे सपने दिखाने की प्रेरणा दी है। यह अंतरिक्ष यात्रा भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।
नए आत्मविश्वास से भरपूर हमारे युवा खेल जगत में अपनी पहचान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए शतरंज में अब भारत के युवाओं का जैसा वर्चस्व है वैसा कभी नहीं था। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के निहित विजन के अनुरूप हम आमूल बदलाव की परिकल्पना कर रहे हैं और जिसके बल पर भारत एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हमारी बेटियां हमारा गर्व है। विश्व शतरंज चैंपियन के लिए फीडे महिला विश्व कप का फाइनल मैच 19 वर्ष की भारत की एक बेटी और 38 वर्ष एक भारत की महिला के बीच खेला गया। रोजगार में भी जेंडर गैप कम हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में से महिला सशक्तिकरण अब केवल एक नारा ना रहकर यथार्थ बन गया है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदाय के लोगों का है। इन समुदायों के लोगों अब हाशिए पर होने का टैग हटा रहे हैं। उस भविष्य की ओर हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं, अनवरत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण बात याद आ रही है। गांधी जी ने बताया था और मैं दोहराती हूँ, भ्रष्टाचार और दंभ लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए। हम सब यह संकल्प लें कि गांधी जी के इस आदर्श को कार्य रूप देंगे और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करेंगे। Dear fellow citizens, this year we had faced the scourge of terrorism. Killing innocent citizens on holiday in Kashmir was cowardly and utterly inhuman. India responded in a decisive manner and with steely resolve. Operation Sindoor showed that our armed forces are prepared to meet any eventuality when it comes to guarding the nation. The strategic clarity and technical capability, they destroyed terrorist hubs across the border. I believe Operation Sindoor will go down in history as an example in humanity's fight against terrorism. In our response, what was most noticeable was our unity, which is also most befitting the response to those who wanted to divide India. The world has taken note of India's stance that we will not be the aggressor, but we will not hesitate to retaliate in defense of our citizens. ऑपरेशन सिंदूर प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन की परीक्षा का भी अवसर था। अब यह सिद्ध हो गया कि हम सभी रास्ते पर हैं। हमारे स्वदेशी विनिर्माण उस निर्णायक स्तर पर पहुंच गया है जहां हम अपनी बहुत सी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये उपलब्धियां स्वाधीन भारत की रक्षा इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात है। मैं एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।